Hello students, I hope you are fit and fine at your home, and in the course of staying at home and being healthy, I am providing you the classes through online classes. And in this course today I am going to explain the Act 5 and Scene 1 of The Tempest. So let's move forward. Already I have given you the summary. If you haven't watched the summary, just watch it, and then this scene will be clear in your mind. And the scene starts from here. Prospero and Ariel are present on the scene, and Prospero in his magic robes, and Ariel, magic robes means magic clothes. And Prospero says, now does my project gather to a head. He says, now my project, the main task has come to an end. वो कहता है कि अब मेरा काम फिनिश होने वाला है, बिल्कुल पूरा होने जा रहा है, कि जो भी कॉन्स्पिरेटर्स थे उनको उनके होश में लाने का टाइम आ चुका है. My charms crack not, my spirits away, and time goes upright with his carriage. And he says, my charms crack not means my magic is going to work very well. He says, my magic is working well, and my spirits means Ariel and other spirits are working and obeying him, and time is going upright with his carriage means the time is going in its right direction. He says कि टाइम बिल्कुल अपने हिसाब से चल रहा है, कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो हमारा टास्क है, वो अपने एंड की तरफ सही होता हुआ जा रहा है. एंड नाउ प्रॉस्पेरो आस्क्स एरियल, हाउज द डे मीन्स ही wants to ask the time. And Ariel says, oh, on the 6th hour, at which time, my lord, you said our work should cease. He says, on the 6th hour, means at 6 p.m. He says, at 6 p.m., Prospero had said that the task will be complete and Ariel will be freed. एरियल कहता है कि आपने कहा था कि शाम को 6 बजे जो टास्क है वो पूरा हो जाएगा और हमारा जो भी वर्क है वो सीज हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. नाउ वी वॉन्ट वर्क एनी मोर. एंड प्रॉस्पेरो सेज, आई डिड से सो व्हेन फर्स्ट आई रेज द टेम्पेस्ट से माई स्पिरिट. ही सेज, आई डिड से सो, उसने कहा कि मैंने बिल्कुल ऐसा ही कहा था, उस टाइम भी मैंने ऐसा ही कहा था जब पहली बार मैंने टेम्पेस्ट खड़ा किया, जब टेम्पेस्ट को मैंने क्रिएट किया, तब मैंने यही कहा था, तुमसे प्रॉमिस किया था कि शाम को 6 बजे आने वाले टाइम में ये काम फिनिश हो जाएगा. नाउ ही आस्क्ड हाउ फेयर्स द किंग एंड हिज फॉलोअर्स, यानी राजा और उसके जितने फॉलोअर्स हैं जो कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, वो सब कैसे हैं. एंड एरियल सेज, confined together in the same fashion as you gave in charge. He says they are confined means they are arrested in a grove as Prospero has ordered. वो कहता है कि जैसा आपने कहा था बिल्कुल उसी तरह से वो एक जगह में confined हैं, उनको रखा गया है एक जगह. Just as you left them all prisoners, sir, in the lion grove which weather fends your cell. He says, just you has told all the prisoners are in the lion grove. Yesterday I had also told you that what is grove. Grove is a place covered by trees and it makes a kind of room. And which grove? In the lion grove which weather fends your cell, जो प्रॉस्पेरो के सेल को डिफेंड करता है. किससे? बैड वेदर से, जो ख़राब मौसम से, आंधी बरसात से प्रॉस्पेरो को सेल को सुरक्षित रखता है. उसी ग्रोव में उन सभी को प्रिजनर बना के रखा है. दे कैन नॉट बर्ज टिल यू रिलीज. दे कैन नॉट बर्ज टिल यू रिलीज. एंड ही सेज दैट दे कैन नॉट मूव टिल यू रिलीज. जब तक प्रॉस्पेरो उन्हें नहीं रिलीज़ करेगा, छोड़ेगा नहीं, तब तक वो यहीं के यहीं रुके रहेंगे. The king, his brother and yours,
Abide all three distracted. The king, who is the king? Alonso, his brother Sebastian, and yours, यानी जो प्रोस्पेरो का ब्रदर था एंटोनियो, ये तीनों लोग क्या कहता है? अबाइड ऑल थ्री डिस्ट्रैक्टेड, यानी सभी अलग हैं, अलग अलग घूम रहे हैं। एंड द रिमाइंडर मॉर्निंग ओवर दैम, रिमाइंडर और जो दूसरे लोग सभी बचे हुए हैं वो सभी विलाप कर रहे हैं उन सभी के लिए। ब्रिमफुल ऑफ सॉरो एंड डिस्मे, एंड एवरीवन इज ब्रिमफुल, यानी बिल्कुल भरे हुए हैं दुख से और डिस्मे, एंग्जाइटी से, एंग्जाइटी चिंता से, वरी से, सभी लोग बिल्कुल एकदम भरे हुए हैं। बट चीफली हिम दैट यू टर्म्ड सर, द गुड ओल्ड लॉर्ड गोंजालो, his tears run down his beard like winter's drops. And he says, chiefly you discussed about Gonzalo. His tears are rolling down his beard like a winter's drops. कहता है कि जैसे सर्दी में जो फॉग होता है, कोहरा, उसकी बूंदें जब दाढ़ी पर लुढ़कने लगती हैं, उस तरह उसके आंसू लुढ़कते हुए जा रहे हैं। गोंजालो को वो रोता जा रहा है। And here he makes a comparison from eaves of reeds. Eaves of reeds, what is reed? Reed is a kind of shrub that grows beside the rivers, जिसको सरकंडा बोलते हैं, जिसकी शायद झाड़ू भी बनती है, उसको रीड बोलते हैं। तो कहता है कि जिस तरह से सर्दियों में ओस की बूंदें रीड से बिल्कुल ऊपर से नीचे की ओर आती हैं, उस तरह से उसके आंसू उसकी बियर्ड से होकर गिर रहे हैं। Your charm so strongly works him that if you now beheld them, your affections would become tender. And Ariel says that your charm, your magic has worked so strongly कि अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपकी जो अफेक्शंस हैं, जो इमोशंस हैं, वो टेंडर हो जाएंगे, आप थोड़ा नरम दिल हो जाएंगे। एरियल कहता है इतना अच्छा मैजिक उन लोगों पर पड़ा हुआ है और उन लोगों की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होगी कि उनकी दशा आप देखेंगे, कंडीशन देखेंगे तो आपको उन पर तरस आ जाएगा। एंड प्रॉस्पेरो सेज, डज दो थिंक सो स्पिरिट? प्रॉस्पेरो सेज दैट यू आर अ स्पिरिट, तुम तो स्पिरिट हो, तुम इंसान नहीं हो, तो तुम क्या सोचते हो इस बारे में? एरियल सेज, माइन वर्ड सर वर आई ह्यूमन। कहता है माइन वर्ड, कहता है सर मैं भी दुखी होता उनकी कंडीशन को देखकर, अगर काश मैं एक इंसान होता तो मुझे भी तरस आ जाता। प्रॉस्पेरो सेज, एंड माइन शैल, कहता है हाँ मुझे तरस आ ही जाएगा। हैज दो विच आर बट एर अ टच ऑफ फीलिंग ऑफ देयर अफ्लिक्शंस एंड शैल नॉट माई सेल्फ वन ऑफ देयर काइंड। ही सेज दैट यू आर एयर अ टच अ फीलिंग ऑफ देयर अफ्लिक्शंस, कहता है कि तुम एयर हो, तुम एक स्पिरिट हो, फिर भी उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनकी फीलिंग्स को अगर एरियल महसूस कर सकता है तो कहता है कि तो क्या मैं महसूस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो उनमें से ही एक हूँ। दैट relish एज allows शार्पली पैशन एज दे, यानी जैसी पैशन जो फीलिंग्स हैं उन लोगों के अंदर आती हैं, उसी वैसी ही फीलिंग्स से मेरे अंदर भी हैं। तो स्पिरिट होकर तुम तरस खा सकते हो, तो मैं क्यों तरस नहीं खा सकता? बी काइंडलियर मूव दैन दो आर्ट, यानी जिस तरह से तुम मूव हुए हो, जिस तरह उन लोगों पर तुमको तरस आया है, तो क्या मुझे तरस नहीं आएगा? दो विद योर हाई रॉन्ग्स आई एम स्ट्रक टू द क्विक, he says they have wronged me, means they have hedged conspiracy against me, they did very bad work against me, but now I will work faster and but with a nobler reason against my fury। कहता है फ्यूरी को, गुस्से को छोड़कर, एंगर को छोड़कर एक नोबलर रीज़न के साथ, एक अच्छे रीज़न के साथ मैं आगे बढ़ूँगा अब, और इस काम को जल्दी फिनिश करता हूँ। डू आई टेक पार्ट? द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन
in vengeance and he says it is a very rare action, यानी बहुत ही अजीब, सबसे अलग हटकर काम होगा जो काम वर्च्यू के साथ किया जाए, अच्छाई के साथ किया जाए, ना कि बदले की भावना के साथ, रिवेंज की भावना के साथ। They being penitent, the sole drift of my purpose doth extend not a frown further. And he says, they being penitent means they are sorry. All the persons are sorry because they had done very bad with Prospero. And he says, the sole drift of my purpose doth extend. कहता है जो मेरा मेन पर्पस था, जो सोल ड्रिफ्ट यानी जो एक मकसद था, वो अब एक्सटेंड होता है किसकी तरफ? फ्रॉन की तरफ नहीं होगा। फ्रॉन यानी गुस्सा, एंगर। कहता है कि अब मुझे गुस्से से कोई मतलब नहीं है। नाउ आई एम नॉट एंग्री विद ऑल दीज पर्सन्स बिकॉज नाउ प्रॉस्पेरो विल शो मर्सी टू ऑल ऑफ दीज पर्सन्स। एंड ही सेज गो रिलीज देम एरियल, एंड ही ऑर्डर्स एरियल दैट he must go and release all the prisoners from the grove. कहता है ग्रोव से सभी लोगों को आज़ाद कर दो। And now Prospero says, my charms I'll break, their senses I'll restore, and they shall be themselves. He says, now I will remove my magic, and they will come to their senses, and they will feel like they were before. वो कहता है कि अपना जादू हटाकर उन्हें बिल्कुल पहले जैसा कर दिया जाएगा। एरियल सेज आई विल फैच देम सर, यानी आई विल कम विद देम। Exit Ariel and Prospero says, tracing a circle on the ground. He traces a circle on the ground, यानी जमीन पर एक घेरा खींचता है, घेरा बनाता है। And he now address all the spirits and he says, ye elves of hills, brooks, standing lakes and groves. And ye means you, as we say you elves of hills. Elf is a kind of angel. Standing lakes and groves, यहाँ के जो elves हैं, and ye that on the sands with printless food do choose the ebbing Neptune and do fly him. And he address all those spirits who run on the beach, जो समुद्र पर दौड़ते हुए अपने प्रिंटलेस फुट के साथ, यानी जिनकी कोई निशान नहीं है पैरों के, और वो एबिंग नेपच्यून यानी समुद्र की लहरों को, उड़ती हुई लहरों को पीछे पुश करते हैं, उसे चेज करते हैं। एंड डू फ्लाई हिम, और उनकी वेव्स को फ्लाई करते हैं, दूर हटा देते हैं। व्हेन ही कम्स बैक मीन्स जब वेव्स वापस आती हैं तो उनको वापस पुश करता है। You demi puppets that by moonshine do the green sour ringlets make. और डेमी पपेट्स यानी जो आधे पपेट्स हैं, एक डिफरेंट काइंड के स्पिरिट्स, जो मून शाइन यानी चांदनी रात में ग्रीन सौर रिंगलेट्स बनाते हैं। व्हाट इज ग्रीन सौर रिंगलेट्स? रिंगलेट्स इज जिसे हम बोलते हैं लट, जैसे बालों में लटें होती हैं उस तरह से, जैसे अंगूर के जो वाइन्स होती हैं, अंगूर की बेलें होती हैं जो पेड़ से नीचे की तरफ आती हैं, तो ऐसा लगता है कि लट है बनी हुई। वेयर ऑफ द यू नॉट बाइट्स, जो यू होते हैं, जो शीप होती हैं, वो बाइट नहीं करती हैं। एंड यू हुज पास टाइम is to make midnight mushrooms that rejoice to hear the solemn curfew, by whose aid weak monsters, though ye be, I have bedimmed the noontide sun, called for the mutinous winds, and twixt the green sea and the azure world. He says, he calls so many different kinds of spirits, and now he says those spirits who make midnight mushrooms and they rejoice, they enjoy to hear the solemn curfew, यानी शांत म्यूजिक को सुनते हुए
घंटियों की आवाज़ों को सुनते हुए नाइट में मशरूम बनाती हैं। वो स्पिरिट्स और जिनकी एड से, जिनकी हेल्प से वीक मास्टर्स हैं वो पावरफुल बन जाते हैं। आई हैव बिडिम्ड द नून टाइड सन, कहता है कि आप सबकी हेल्प से मैंने क्या किया है, जो नून टाइड सन है, जो सूरज है, बिल्कुल दोपहर में उसको डिम कर दिया है, रात के जैसा कर दिया है। कॉल्ड फॉर द म्यूटिनस विंड्स एंड ही हैज़ कॉल्ड म्यूटिनस विंड मीन एंग्री विंड्स and twixt the green sea and the azure vault. Green sea and azure vault. Azure vault is the sky. The sky. कहता है उनको ट्विक्स्ट कर दिया है, एकदम एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया, एक वॉर कंडीशन की तरह। जैसे जब तूफान आने का टाइम होता है उस तरह का जो सीन क्रिएट होता है, जस्ट लाइक दैट ही क्रिएट सच काइंड ऑफ सीन। वो कहता है आप सबकी हेल्प से मैंने ये काम किया है। Azure Wall set roaring war to the dread rattling thunder have I given fire, and he says the dread rattling thunder, जो बादलों की गड़गड़ाहट है उनमें जो बिजली कड़कती है उसको फायर मैंने दी है। and rifted Job's stout oak, और and he says that he has rifted the Job's stout oak. रिफ्टेड मीन्स ही हैज़ क्लीव्ड, उसको फाड़ दिया है, आधा आधा कर दिया है। जॉब्स स्टाउट ओक यानी जॉब्स मीन्स जुपिटर, जो ग्रह है जुपिटर बृहस्पति, उसके ओक को यानी जो पेड़ होता है ओक का, इस तरह से वो कहना चाहता है कि उसने एक ऐसा सीन क्रिएट किया है बिल्कुल तूफान जैसा। विद हिज ओन बोल्ट यानी जॉब के जुपिटर के ओक को उसके ही खुद के बोल्ट से उसके अलग अलग कर दिया है। The strong-based promontory have I made shake, and by the spurs plucked up the pine and cedar. And he says, strong-based promontory. What is promontory? The volcanoes, the volcano mountains. Have I made shake? He says, मैंने उनको हिलाकर रख दिया माउंटेन्स को। And by the spurs plucked up the pine and cedar. Pine and cedar के ग्रेट ट्रीज को उसने तोड़कर फेंक दिया। ग्रेव्स एट माई कमांड यानी उनको बिल्कुल ग्रेव बना दिया है अपने सिर्फ एक कमांड से। ग्रेव्स एट माई कमांड हैव वेग्ड देयर स्लीपर्स। ग्रेव्स जो कब्र हैं उसकी कमांड पर, प्रोस्पर की कमांड पर अपने स्लीपर्स को यानी अपने मुर्दों को उसने खड़ा कर दिया। कहता है कि मेरे मैजिक से कब्रों में दफन हुए मुर्दे चलने लगते हैं। ओब्ड एंड लेड एम फोर्थ बाय माई सोपोडेन डार्ट, और कहता है कि उनको चलने पर मजबूर कर देता हूँ, ओप करने पर यानी ओपन करने पर, बाय माई सोपोडेन डार्ट बाय माई पावरफुल आर्ट। कहता है कि मेरी पावरफुल आर्ट से कब्र के मुर्दों को जिंदा रखना और उनको चलाना ये सब कुछ पॉसिबल है। बट दिस रफ मैजिक आई हेयर एब्जर्व and when I have required some heavenly music which even now I do, he says, अब जो रफ म्यूज़िक है, जो मैजिक है उसका, वो कहता है कि मैं उसको एब्जर्व कर दूंगा, छोड़ दूंगा। एंड व्हेन आई हैव रिक्वायर्ड, और जब से ज़रूरत है सब कुछ म्यूज़िक की, कहता है बिल्कुल अभी ज़रूरत है म्यूज़िक की। टू वर्क माइन एंड अपॉन दियर सेंसेज दैट दिस एरी चार्म इज़ फॉर आई विल ब्रेक माई स्टाफ। और कहता है इस म्यूज़िक के बाद, हेवनली म्यूज़िक के बाद और उनकी सेंसेस में लाने के बाद, जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनको उनकी सेंसेस में लाने के बाद, जो एरी चार्म है, जो जादुई, जो एक जादू है उसको ख़त्म कर दूंगा। आई विल ब्रेक माई स्टाफ, और उसका जो मैजिकल वॉन्ड है, जो जादुई छड़ी है, उसको तोड़कर फेंक देगा। वो ये कहता है कि मेरा टास्क फिनिश होने वाला है। वो गिनाता है सब कुछ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ स्पिरिट्स की हेल्प की वजह से और अपने मैजिकल पावर की वजह से।
एंड ही सेज bury it certain fathoms in the earth, और कहता है कि जो मेरा स्टाफ है, जो मैजिकल वॉन्ड है, छड़ी है, उसको ज़मीन के नीचे कई फैदम्स की गहराई में बरी कर दूंगा, दफन कर दूंगा। फैदम्स क्या है? जो सी को नापने का एक मेज़र है, एक यूनिट है सी की गहराई को नापने के लिए। एंड डीपर देन डिड एवर प्लमेट साउंड आई ड्रोन माई बुक, और कहता है कि कभी भी प्लमेट क्या है? एंकर, एंकर जो बोट में लगा होता है नीचे, उसको एक जगह रखने के लिए, जो नीचे टच करता है लैंड को। तो कहता है कभी भी एंकर, कभी भी कोई एंकर इतनी गहराई पर नहीं रहा होगा जितना मैं अपनी बुक को नीचे फेंक दूंगा, दफन कर दूंगा, मैजिकल बुक को छोड़ दूंगा। सो स्टूडेंट्स, today video is up to here, and next time you will see the next video. And this video you will see that all the conspirators have come on the scene, and Prospero makes their senses alive, और सब लोग होश में आ जाएंगे, और लास्ट में सीन और पूरा प्ले फिनिश हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।